The next part is the CPU, that is your central processing unit. It is divided into three parts, that is ALU, arithmetic logic unit, CU, the control unit, and the third one is registers. अभी तक जब आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो we have two parts with respect to CPU, that is ALU and CU, but now you will study the registers also. What arithmetic logical unit do? It performs all arithmetic and logical. Arithmetic is with respect to the basic arithmetic operation, that is plus, minus, multiplication, division. And logical means when we are going to compare the things, that is whether two things are in the relation of less than or more than, or equality, less than equal to, more than equals to, and not equals to. That apostrophe sign in front of equals to shows that the terms are not equal. So these are the operation which comes under ALU, because these are the basic requirements. See, then what the control unit did: control and guide all instruction. You have provided only the instructions over here, how they will done, how they will get control. Okay? Or computer, how the computer get the instructions, that what to do, how the result will be manipulated. All these things come under control unit. Okay? Now फिर if we are going to control all the things by CU, then what is the use of registers? We are having some intermediate results. Ultimately, so the final result has been shown to us. So the intermediate, or you can say temporary information, is hold in registers. It temporarily stores the data during processing period. So a number of subdivisions or a number of sub parts has been done during any logical or arithmetic operation. All these sub basic intermediate things get stored in the register. So CU is also controlling it, but here we are not performing anything, we are just storing the things, and ultimately we get the final results. CPU, because it is doing all the thing, when you have to calculate something, all the things goes in your brain, that okay, I have to add 2 and 3, so 2 or 3 are the numeric value, I have to add, they will become 5. You are using different techniques to find the sum of this. That's why it is said that CPU, it is brain of computer. Why? If it is brain, then memory is required. You know how we are going to multiply the terms by the means of tables or the thing. It is a part of memorization. Similarly, because it is brain, hence memory is required by it. Memory of a computer is volatile. Volatile means what we have going through, it will get vanish, और वो सारा का सारा ख़त्म हो जाता है या साफ़ हो जाता है जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई हम बंद कर दें. इट इज़ सेड टू बी वॉलेटाइल. जो चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो जाएं, उड़ जाएं, है ना, दे आर द वॉलेटाइल वन. Hence, it can remember the things till it get electric supply. जब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई है उसको सब कुछ याद है. इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद और सब कुछ बंद. अभी अगर हम कहें ना तो मॉरल वैल्यूज़ पर अगर बात किया जाए तो हमारी मेमोरी भी ना वॉलेटाइल होनी चाहिए. किसी ने हमको कुछ बुरा कहा और वो टाइम के साथ ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, पर हम क्या करते हैं, हमारी मेमोरी जो है वो नॉन वॉलेटाइल है. ऐसी चीज़ों को हम कभी भूलना ही नहीं चाहते और हमारा दिमाग हमें भूलने भी नहीं देता. तभी तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि अरे इसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे इससे बदला लेना है या अब इससे बात नहीं करनी. तो इट शुड बी इन अ वॉलेटाइल मैनर फॉर द बैड थिंग्स, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए आपका नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए. ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक मेमोरी एड्रेस. अभी हमको क्या सेव करना है, कैसे सेव करना है, इसके लिए हमारे पास यूनिक मेमोरी एड्रेसेस होते हैं. आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क, इट क्लीन इट्स मेमोरी एंड मेमोरी स्पेस फॉर द नेक्स्ट टास्क. अभी हमने क्या कहा, टेम्परेरीली स्टोर करना है. तो जो चीज़ें थी वो हमने स्टोर की. अब अगले स्टेप के लिए जब वो मूव करेगा तो वो क्या करता है कि जो पिछला स्पेस जो उसने ऑक्यूपाई किया है उसको वो खाली कर देता है.
है ना। खाली करने से क्या फ़ायदा हुआ, जो नेक्स्ट कैलकुलेशन होना है या जो नेक्स्ट स्टेप होना है उसको वो स्पेस प्रोवाइड हो गया। तो इस तरीके से हमारे मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो काम करते रहते हैं। हाउ मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू सेल। ठीक है, फर्स्ट डिवीज़न हम इसको कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड इट इनटू सेल, देन द सेल आर इन द फॉर्म ऑफ बिट। सेल में हम क्या है, बिट के फॉर्म में चीज़ों को स्टोर करते हैं। व्हाट बिट इज़ इट सेल्फ, it is collection of 8 bits, then it is said to be 1 byte। और बिट क्योंकि बहुत ही स्मॉल है, what we have either 0 और 1, जो हमारा बेसिक फॉर्म है यूज़ करने का या स्टोर करने का, दैट इज़ बिट। अभी 0 1 0 ये तो सिग्नल्स की फॉर्म में है, तो वी कांट एबल टू स्टोर इट। तो जो मिनिमम हमारा रिक्वायरमेंट है स्टोरेज का, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइट। और बाइट में हम क्या करते हैं, 8 बिट्स को कलेक्टिवली लिखते हैं, और विच इज़ ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो बाइट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट टू रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है ना। तो ये हमको मालूम ही होना चाहिए कि बाइट किस तरीके से होगा। अब हाउ यू विल हैव ईदर 1 और 0 इज़ नोन एज 1 बिट, या तो 1 या 0, मतलब ऑन या ऑफ। ठीक है, 8 बिट्स फॉर्म 1 बाइट। अभी क्योंकि देखो हमारी जो बेसिक यूनिट है वो 0 और 1 ही है, मतलब 2 ही यूनिट्स है हमारे पास। तो 2 के पावर के फॉर्म में ही हम अपनी सारी यूनिट्स को जनरेट करते हैं। तो 1 किलो बाइट इट इज़ 2 to the power 10, दैट इज़ 1024 बाइट। 1 मेगा बाइट 2 to the power 10 KB, मीन्स हमारी प्रीवियस यूनिट जो है वो इसका पार्ट बनती जाएंगी। तो 1024 KB। 1 गीगा बाइट 2 to the power 10 MB। 1 terabyte 2 to the power 10 GB। 1 petabyte is 2 to the power 10 TB। then 1 exabyte 2 to the power 10 peta and 1 zettabyte। अभी भी हम जीटा तक हम पहुंच चुके हैं, मतलब इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है हमारे पास। आप ये सोचो कि आपको मोबाइल में डेटा जीबी में मिलता है, 2 GB डेटा है, 3 GB डेटा है, मतलब हम इस वाले स्टेप्स पर होते हैं, वो भी हमसे यूज़ नहीं हो पाता इस वाले स्टेप से। जो 1 GB इज़ 2 to the power 10 MB। और आप अपने अगर देखोगे ना, अगर ये क्लासेस वगैरह ये सब ना हो तो आप किलोबाइट्स में सिर्फ डेटा को यूज़ कर पाते हो, क्योंकि जनरली यू पीपल यूज़ टू वॉच सम वीडियोज़ और चिट चैट ऑन व्हाट्सएप, तो KB में ही वो हमारा यूज़ हो पाता है। अब यहाँ पर एक आपको ना, क्योंकि जब हमारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, वाइवा होता है, तो कुछ चीज़ें बड़ी ऐसी हैं जो जनरली बच्चों से पूछा जाता है, दैट इज़ 1 निबल। निबल एक ऐसी यूनिट है जो बिट और बाइट के बीच में आती है। हम क्या कह रहे हैं, बाइट स्मॉलेस्ट डेटा यूनिट है, पर उसमें क्या होता है 8 बिट कंबाइंडली होते हैं। तो हम ये कहते हैं 2 निबल्स के अगर हमने सेट बना दिए तो वी हैव 1 बाइट, दैट इज़ 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट। ये मैंने आपको उसका हिराकी दिखा दिया है कि किस तरीके से हम मूव करते हैं। हर बार याद रखेंगे 2 to the power 10 के फॉर्म में ये चलता जाएगा। मेन मेमोरी, व्हाट मेन मेमोरी, मेन मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज़ टेम्परेरी, हैंस टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अभी देखो हमने ये कहा मेन, जो हमारी मेन मेमोरी है वो खुद ही टेम्परेरी है, तो टेम्परेरीली उसमें सारी चीज़ें स्टोर हुई। अब टेम्परेरी स्टोरेज का तो कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो आपको बंद करनी पड़ेगी, अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिक सप्लाई तो मिल नहीं सकती है हमें। ठीक है, तो वो तो सारा का सारा वॉलेटाइल हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो वी नीड द थिंग्स टू गेट स्टोर, कि वो हमारे पास हमेशा रहें, जब तक हम चाहें तब तक वो रहें। तो टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन परमानेंटली, हमको उसको स्टोर करना है, तो वी नीड सेकेंडरी मेमोरी। जहाँ देखो 2 चीज़ें होती हैं, जहाँ काम हुआ दैट इज़ प्राइमरी, हमने सारी चीज़ें की हैं वहाँ पर, और हमारे पास सब कुछ था और उसे हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ उसको स्टोर किया या हमने उसे यूज़ किया, दैट इज़ सेड टू बी सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में हम क्या करते हैं, प्राइमरी मेमोरी में जो भी हमारा डेटा, जो भी हमारी चीज़ें हुई हैं, उनको हम अपने पास परमानेंटली स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर वो कैसे होगा, कुछ ना कुछ हमारे पास ऐसा मोड या मीडियम होता है जिसके थ्रू हम उसको स्टोर कर लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में रखना, CD में रखना। CD जो होती हैं वो दोनों तरीके की होती हैं, रीडेबल और राइटेबल। जनरली वी यूज़ रीडेबल राइटेबल या री राइटेबल, जिसपे हम दोबारा लिख सकें, क्योंकि भाई हमने एक स्टोर किया, अब थोड़े दिनों बाद उसका हमें कोई यूज़ नहीं है, तो क्या CD ख़राब होगी, नहीं, वी आर एबल टू अगेन राइट इट ऑन दैट।
अभी इतना सीडीज़ लेकर घूमना स्क्रैच हो जाता है क्योंकि ऑप्टिकल के फॉर्म में तो बहुत दिक्कत होती है। एक छोटा सा डिवाइस होता है हमारे पास, पेन ड्राइव, जो आप सबके पास रहता है, जिसमें आप जब चाहो, क्योंकि आप उसको इजीली लेकर घूम सकते हो, है ना, कैरी कर सकते हो, तो वी यूज़ पेन ड्राइव। स्टोरेज भी बहुत अच्छा है, देखने में भी बहुत कॉम्पैक्ट है, एंड वी आर एबल टू कैरी इट वेरी इजीली। एज ऑल दीज डिवाइसेस स्टोर्स डेटा, ये सब हमारा क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए काम आ रहे हैं, हैंस वी कॉल दैम स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी, इट हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज रैम विच इज़ वॉलेटाइल, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, एंड रोम विच इज़ नॉन वॉलेटाइल रीड ओनली मेमोरी। I generally used to mark the terms which has been used to form the synchronium for that, है ना। तो in RAM the memory can be accessed used for information transfer from any desired the required random location। हम information transfer के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं किसी भी required form में। टाइप्स ऑफ रैम, रैम के दो टाइप होते हैं, एक होता है DRM और एक होता है SRM, दैट इज़ डायनेमिक रैम एंड स्टैटिक रैम। जिसमें मूवमेंट हो, मतलब वैन वी आर गोइंग टू यूज़ इट और वी कैन से कि फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, दैट इज़ द डायनेमिक वन, एंड व्हेन द लोकेशन आर फिक्स इट इज़ द स्टैटिक। रोम रीड ओनली मेमोरी, व्हाट वी हैव, वी कैन रीड ओनली, नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। हम वहाँ से चीज़ों को ले सकते हैं पर हम वहाँ पर करेक्शन नहीं करेंगे और उसको दोबारा यूज़ भी नहीं करेंगे। रोम जो है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नाउ वी आर हैविंग प्रोग्रामेबल रोम, हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ई रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, हमने जो प्रोग्राम किया उसको इरेज करें। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, हम इलेक्ट्रिकली जो भी हमारा डेटा था उस सबको डिलीट कर देते हैं, नए डेटा को हम उसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटी, अभी हम बात करेंगे स्टोरेज यूनिट की, जो हमने कहा हमारा सेकेंडरी के फॉर्म में है। तो स्टोरेज यूनिट जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज है, परमानेंट है। कैपेसिटी वैसा ही होता है जैसे प्राइमरी मेमोरी में है, उससे ज़्यादा भी होता है। स्टोरेज के लिए वी आर हैविंग 3 टाइप्स ऑफ मीडिया, दैट इज़ मैग्नेटिक मीडिया, ऑप्टिकल मीडिया एंड फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मीडिया क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे पास ना, पहले पता नहीं आप लोग तो नहीं देखे होंगे, ये किस तरीके से होता है, टेप्स होते थे और उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड लगा होता था जिस पे डेटा जो होता था वो लिख दिया जाता था, जैसे हमारी हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ गीगाबाइट और टेराबाइट, मतलब यहाँ तक लिमिटेड है। ऑप्टिकल मीडिया हमारे पास CD और DVD के फॉर्म में होता है। CD दोनों तरीके की हैं, रीडेबल और रीराइटेबल। रीडेबल जो होती है जिसमें आपकी मूवीज़ आती हैं, आपके कंटेंट आते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते हैं, इनका 700 MB तक का कैपेसिटी होता है। और रीराइटेबल जो होती हैं वो रीडेबल से 20 टाइम्स फास्टर्स होती है, बहुत फास्ट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें आ जाती हैं। फ्लैश मेमोरी मतलब कैच मेमोरी, है ना, पोर्टेबल है पेन ड्राइव, और इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ 256 MB से लेकर 128 GB तक है। इसको हमने फ्लैश मेमोरी क्यों कहा, क्योंकि आप इसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को वहाँ से ट्रांसफ़र करने के बाद हटा सकते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज फ्लैश मेमोरी। नाउ अ डेज वी आर हैविंग ब्लू रे डिस्क और BD भी हम इसको कहते हैं, ब्लू रे और BD। ये ऑप्टिकल डिस्क है स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट के लिए, जिसमें हम हाई डेफिनेशन, अभी आप देखते होगे ना, योर TV इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ HD, दैट इज़ हाई डेफिनेशन, पिक्सल्स के फॉर्म में हर चीज़ जो है वो छोटे डॉट्स के फॉर्म में, दीज आर सेड टू बी पिक्सल्स। और जब वो डॉट बहुत क्लैरिटी के साथ मिलती हैं, मतलब हमको कहीं कुछ समझ में ही नहीं आता कि कोई डॉट है, वो ऐसा लगता है क्रिस्टल क्लियर है, जैसे चीज़ें हमारे आगे हो रही हैं, दैट इज़ सेड टू बी हाई डेफिनेशन HD। ठीक है, तो यहाँ पर हम HD वीडियोस के लिए और डेटा स्टोरेज के लिए इसको यूज़ करते हैं। व्हाट द मीडियम टू बी यूज्ड इन इट यूजेस रेड लेज़र और ब्लू वायलेट लेज़र, ठीक है, टू रीड एंड राइट डेटा। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 128 GB तक होती है। ठीक है, तो दैट इज़ विद रेस्पेक्ट टू स्टोरेज डिवाइसेस। देन वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। गुड नाइट।